السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين ثم آمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رحمن يا رحيم انشاءاللہ ہمارے صفات کا جو چل رہا ہے، صفات میں ہم نے 4 جوڑے کر لیے ہیں، یعنی 2 جوڑے کر لیے ہیں جن میں 4 صفات پائی جاتی ہیں، 5ویں ان کے درمیان میں ہے بینیہ صفت، تو 4 ہم گنتے ہیں، کنسیڈر کرتے ہیں کیونکہ وہ درمیان والی انہی کے حصے میں آتی ہے۔ آج ہم نے انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ 5ویں صفت کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں آپ کو ٹھیک علم دے سکوں، اور وہ سراسر اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، آپ کے ذہن کھول دے کے اس میں پڑ جائے وہ جو بھی لیں آپ انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو پھر ہی ہوتا ہے، انسان کچھ بھی چاہے کہ میں یہ کر لوں وہ کر لوں، جب تک اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، تو اس لیے سراسر یہ اللہ کی رحمت کے اوپر ہی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا کسی کو دینا چاہتا ہے انشاءاللہ، اور دعا جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہتھیار ہے انسان کے پاس انشاءاللہ۔ تو ہم استعلاء حمز کیا جس میں ہوا کا تھا، ظاہر ہوا کا یعنی کہ بہاؤ تھا، ہوا جو بہت جلدی باہر نکل رہی تھی، اور جہر میں ہوا رک رہی تھی۔ پھر ہم نے دوسرا جوڑا کیا آواز کا، جو آواز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، تو آواز میں ہم دیکھتے ہیں کہ شدہ میں آواز بالکل بند، توسط میں آواز کچھ چل رہی ہے کچھ بند ہے، اور جو رخاوہ ہے اس میں آواز بالکل رننگ کر رہی ہے، دوڑ رہی ہے۔ تو یہ ساری ملا کے، ان سب کو ملا کے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم آواز سے ڈیل کرتے ہیں، تو سب حروف کو اتنا ہی ٹائم دینا ہے جتنا ان کا ٹائم ہے، یعنی ان سے کم ٹائم نہیں دینا۔ یہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ کسی حرف کو زیادہ ٹائم دے دیا کسی کو کم ٹائم دے دیا، اور پھر یہ ہے کہ یعنی جب ان کے اوپر ان کی کنڈیشن آئے گی وہ تو ہوگا ہی، کوئی ایسا لیٹر ہے جس پہ مد آ جاتی ہے، کوئی اور ہو جاتی ہے بات، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ جو عام حالات میں ان کا ٹائم اتنا ہی دینا ہے۔ ان کا صرف اور صرف یہ خلاصہ یہی ہے رخاوہ کا کہ سارے یہ ان صفات کا شدہ اور رخاوہ اور توسط کا کہ مقدار کے لحاظ سے یہ متحرک حروف جو ہے ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ متحرک کیا؟ حرکت والے، زبر زیر پیش والے حرکت جو حروف ہیں یہ سب ایک دوسرے کے برابر ہیں، ان سب کو ایک حرکت کے وقت ہی دیا جائے گا۔ کب؟ اب میں نے کہا نا کہ کنڈیشن کے لحاظ سے یہ اصطلاح میں، کیونکہ یہ تھوڑی سی ریویژن ہوتی ہے تو پھر آگے بڑھا جاتا ہے تو پھر یاد رہتا ہے، تو اصطلاح سے آنے سے پہلے یہ پہلی جو صفت ہم نے اسے کل کی ہے اور کچھ دنوں میں کور کیا ہے ان میں جب حرکت ہوگی ان کے اوپر، تینوں جو ان کی صفات ہیں شدہ، رخاوہ یا توسط کوئی بھی ہو،
इनमें जब हरकत होगी हर्फ के ऊपर, तो इन सबको बराबर किया जाएगा। कैसे? एक हरकत ही दी जाएगी। साकिन हरूफ की लंबाई की मिकदार मुख्तलिफ होती है, क्योंकि वो जैसा हर्फ डिपेंड करता है उसके ऊपर, और उसका इन्हिसार उस उनके ग्रुप पर होता है कि ग्रुप वो किसका है। जैसे हम कहते हैं हरूफ शजरिया है, हरूफ लिस्फिया है, हरूफ नितइया है, तो इस तरह उनके ग्रुप के ऊपर इन्हिसार उसका होता है कि वो कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। रिखावा के ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले हर हरूफ को सबसे ज़्यादा वक़्त दिया जाता है, ताहम आपस में इन हरूफ का वक़्त जो होता है, वो बराबर होता है, यकसा ही होता है। तवस्सत के ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले हरूफ का, यानी कि जे ग्रुप, अब मैंने उनके दूसरे ग्रुप कहा है जहाँ पे जे इनके सिफ़ात के भी ग्रुप होंगे, ठीक है? सिफ़ात के ग्रुप में भी पहले हमने मखारिज के ग्रुप किए, और अब सिफ़ात के भी ग्रुप होंगे अलहदा, जो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे जी सिफ़ात हैं, हम कर रहे हैं। तो रिखावा के ग्रुप से सॉरी तवस्सत के ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले जो हरूफ का वक़्त रिखावा से कम होता है। क्योंकि तवस्सत क्या है, वो हम कर चुके हैं, क्यों कम होता है आप वहाँ से फाइंड आउट करेंगे इंशाल्लाह रिवीजन में। लेकिन आपस में उनका वक़्त भी एक-दूसरे के बराबर होता है। यानी रिखावा के तमाम हरूफ आपस में एक-दूसरे के बराबर होंगे, और यानी हरकत वाले, और तवस्सत के अपने जो उनके साथी हैं उनके सब बराबर होंगे साथ, और जो शिद्दा के हैं वो अपने साथियों के साथ बराबर होंगे। तो तमाम साकिन हरूफ जो हैं, तमाम साकिन हरूफ में से सबसे कम वक़्त हरूफ शिद्दा का है। लेकिन आपस में बहरहाल बराबर ही होते हैं। ये आपने लिखना है लोग, बिल्कुल क्लियर करके, इनका खुलासा मैंने दे दिया कि कल मुझे ज़हन से निकल गया देने का, और टाइम भी बहुत हो रहा था फिर। तो ये है कि सबसे कम वक़्त शिद्दा का है, सबसे ज़्यादा रिखावा के लेटर्स का आपस में टाइम है, बराबर है, लेकिन सबसे ज़्यादा है टाइम, ठीक है? उससे कम तवस्सत के लेटर का है, लेटर्स जितने हैं, और सबसे कम शिद्दा का, सबसे कम शिद्दा का इसलिए है क्योंकि वो फौरन आवाज को रोक दिया जाता है, और जा टूट जाती है, जिसकी वजह से वो कम होता है। ये इनका खुलासा मैंने आपको दे दिया है, ताकि आप लोगों को जो कन्फ्यूजन है, एक तो रिवीजन हो गई है इस खुलासे से, दूसरी ये है कि इसमें आप लोगों के लिए थोड़ा-सा और क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप लोग नोट्स लिख रहे हैं और रिवाइज़ कर रहे हैं तो फिर हो जाना चाहिए। सॉरी, इंशाल्लाह। तो हम आते हैं अपने आज की सिफ़त के ऊपर। तो आज की सिफ़त में हमारा है इस्तआला। इस्तआला, इस्तआला जो है वो आला से है। इस्तआला आला से है। आला क्या है? हम कहते हैं सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। वहाँ पे आला पाक है अल्लाह, रब्बी मेरा रब, पाक है मेरा रब अल्लाह, आला सबसे ऊपर, यानी ऊपर वाला, ऊपर, है ना? आला ऊपर। तो ये हम लघवी मायनी इसकी क्या है? बुलंदी। लघवी मायनी क्या है? बुलंदी। अब इस्तिलाही मायनी इसके, इस्तिलाह में इसकी तारीफ क्या है कि हरफ़े मुस्तअला को अदा करते, मुस्तअला का क्या है? जिस पर ये सिफ़त पाई जाती है जिन हरूफ पर, वो मुस्तअला है।
ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि शद जिन पर पाई जाती हैं वो हरूफे शद्दा हैं, मुशद्दद हैं, सॉरी, वो मुशद्दद कहलाती हैं। शद जिन पर पाई जाती है वो मुशद्दद कहलाते हैं। तो इस तरह आप कहेंगे कि हरूफे मुस्ताला, इस्ताला लेटर कौन है, मुस्ताला लेटर कौन है, जिन पर ये इस्ताला की क्वालिटी आती है। इंशाल्लाह ताला। एक मिनट मुझे प्लीज दे, इसमें मैं थोड़ा सा माजरत खा हूँ। इंशाल्लाह। तो क्या है कि अब इनको इनकी देखते हैं कि हरूफे मुस्ताला को अदा करते वक्त आवाज को ऊपर तालू यानी नरम तालू की तरफ उठाना, आवाज को ऊपर नरम तालू की तरफ उठाना, सॉरी, जुबान को ऊपर नरम तालू की तरफ उठाना। ठीक है। तो आवाज जो है वो सख्त तालू की तरफ जाएगी, आवाज का डायरेक्शन सख्त तालू की तरफ होगा, और जुबान की जड़ जो है पीछे से नरम तालू से, जहां पे काफ का मखरज है, आ आ वहां पे। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन कहाँ है, इसकी तस्वीर में भी देख सकते हैं, क्योंकि जब आप सामने नजर आ रहा हो तो आसानी होती है। तो डायरेक्शन जो है इसका हवा का, सॉरी, आवाज का डायरेक्शन जहां जाएगा, आवाज किधर को जाएगी, आवाज का रुख किधर होगा, सख्त तालु के ऊपर, जो डोम होता है हमारा ये हिस्सा। और जबान की जड़ कहाँ लगेगी, नरम तालु के ऊपर, जो सख्त तालु शुरू होने से पहले जो नरम तालु है उसके ऊपर लगेगी। तो ये फिर इंशाल्लाह ताला इसको हम देखते हैं, क्योंकि बिल्कुल लघवी मानी क्या है, बुलंदी, बुलंद होना। जिन हरूफ में जो सिफत पाई जाए उनको मुस्तालिया कहते हैं। ठीक है। ये दोबारा मैं बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इन हरूफ को अदा करते वक्त जुबान की जड़ तालू की जानिब उठती है, तालू कौन सा, नर्म तालू, जिसकी वजह से ये हरूफ मोटे पड़े जाते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला यही वजह होती है, क्योंकि जुबान की जड़ पीछे से उठी होती है। हवा जो आवाज का दबाव है, आवाज जो है, दबाव नहीं, डायरेक्शन, आवाज का रुख, हम कहते हैं हवा का रुख, आवाज का रुख। तो ये अब पहले हमने हवा के साथ डील किया, सेकंड में हमने आवाज के साथ डील किया, एंड आज आवाज के डायरेक्शन की तरफ है, आवाज के रुख की तरफ है कि आवाज का रुख किधर जाता है। ये क्वालिटी इसमें पाई जाती है कि यानी कि इस्ताला लेटर्स में 7 लेटर्स हैं जिनमें ये सिफत पाई जाती है कि उनकी आवाज का डायरेक्शन जो है वो सख्त तालु की तरफ जाता है, और जुबान की जड़ नरम तालु की तरफ लगती है जाके। सख्ती से लगे, नरमी से लगे, ये हरूफ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इंशाल्लाह ताला इसको हम देखते हैं कि जुबान के पिछला हिस्सा जो है, जड़ किधर है, पिछले हिस्से, तो पिछले हिस्से को जड़ कहते हैं। अगर मैं बताती रहूं, कोई बहन गौर फिक्र ना करे और कहे कि जड़ कहाँ है, मुझे तो जड़ नजर नजर नहीं आ रही, तो जड़ नजर नहीं आती, जुबान की जड़ नजर नहीं आती। ठीक है। जुबान की जड़ को सिर्फ आपको फील करना पड़ता है कि लगी है कि नहीं। ठीक है। इंशाल्लाह। तो प्रेशर किधर जाएगा, देख, जब जुबान की जड़ ऊपर से उठी होगी तो ये प्रेशर देखे किधर जा रहा है, दरमियान में, अ, जुबान दरमियान से नीचे हुई हुई है, क्योंकि कुछ हरूफ के लिए ये ऊपर भी उठेगी फ्रंट से।
कुछ हरूफ ऐसे होंगे जिनसे इसकी जुबान की नोक भी आगे से उठेगी और लगेगी, जो कि हमने मुखारिज कर चुके हैं और हमें पता है कौन कौन से हैं वो। तो इंशाल्लाह ताला बाद में हम डिटेल में देखते हैं, तो उनको फिर देखते हैं। अब इतना देख लें कि जुबान पीछे से ऊपर उठी हुई है और दरमियान से नीचे है। तो ये इसकी आवाज़ जब ज़ुबान नीचे जाती है दरमियान से, तो आवाज़ का डायरेक्शन जो है वो तब्दील होके वो दबाव जो है आवाज़ का वो सख्त तालु की तरफ बढ़ जाता है। जैसे सख्त तालु के भी अगले हिस्से की तरफ, मुँह बाहर आने के वाली हिस्से की तरफ बढ़ता है। तो इसीलिए ये इन हरूफ में मोटाई पाई जाती है। तो ये इसकी डायरेक्शन को आला कहते हैं, ठीक है? किसको कहते हैं? डायरेक्शन को आला कहते हैं, ठीक है? तो इसमें फिर हम देखते हैं कि सख्त तालु जो है उसका भी लिंक है इससे, इस सिफत से। नरम तालु का भी लिंक है और ज़ुबान का भी लिंक है, ज़ुबान की जड़ का। और फिर ये है कि हमारा कौवा जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस, या हम ये भी कहते हैं युवला। तो ये जो है, जो हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में, ये कौवा जो है लटका हुआ जो हिस्सा, इसको स्मॉल टंग भी कहते हैं। छोटी ज़ुबान, ठीक है? तो वल्लाहु आलम, बहुत सारे नाम हैं, और ज़ुबानों में भी और बहुत सारे नाम होंगे। तो ये इस जो है, जब ये आवाज़ जो है, क्योंकि जड़ ऊपर से ऊपर उठी हुई है, तो क्या है कि रास्ता तंग है, ठीक है? रास्ता तंग है। इस बहुत नैरो से, तंग से रास्ते से होती हुई जब वो आवाज़ बाहर आती है, तो क्या होता है, क्योंकि काफ़ी हद तक ये देखें, काफ़ी हद तक ज़ुबान जो है, क्योंकि ज़ाहिर है लगी हुई है, या लगने के करीब है, या थोड़ा-सा टच है, तो ये काफ़ी हद तक ये रास्ता बंद है। जहाँ पे मेरा एरो चल रहा है, जहाँ पे हाथ सा, जहाँ देखें काफ़ी हद तक ये रास्ता बंद है, और इसको निकलने का, आवाज़ को और हवा को निकलने का जो है, ये इसके लिए मुश्किल हो रही है। तंग रास्ते से होकर वो बाहर आती है, या फिर किसी रूप में रुकती भी है, जिस तरह भी आप कहें। तो यानी कि ये रास्ता उनका बंद होता है। काफ़ी हद तक आवाज़ को तंग जगह से गुज़रना पड़ता है। कुछ हरूफ में ऊपर लगती है, किसी में ज़्यादा लगती है, किसी में कम लगती है। तो ये फिर इसमें 3 चीज़ें याद रखने की है, 3 चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1, कौवे का बंद होना, यानी एपिग्लोटिस जो है वो क्लोज़ होता है, बंद होता है। फिर जगह तंग होती है, नंबर 2, जगह तंग हो जाती है, क्योंकि वो बंद हो गया, ज़ुबान ऊपर उठ गई, जगह तंग हो गई। नंबर 3 इसका है कि द साउंड गोइंग अप, आवाज़ जो है, आवाज़ का ऊपर जाना, ऊपर को डायरेक्शन उसका ऊपर की तरफ जाना, सख्त तालु की तरफ। ये इनकी याद रखें, इनकी चीज़ें हैं। अब हम एक-एक लेटर की तरफ आते हैं, ठीक है? एक-एक लेटर में हम झाँकते हैं कि हमारे लिए क्या है। सबसे पहले हम सॉरी, मैंने अभी बताया नहीं कौन से लेटर हैं। खुस्सा, दागतिन, क़िद, खुस्सा, दागतिन, क़िद। ये लेटर्स जो हैं, इन लेटर्स को हम देखते हैं कि मैं इनको बता चुकी हूँ पहले। क्या है? खुस्सा, दागतिन, क़िद, ख़ा, स्वाद, दौद, ग़ाइन, तौ, क़ाफ, 2 नुक्ते वाला क़ाफ, और ज़ा, तौ, ज़ा। कौन सी ज़ा? जिनको हम ज़ोएँ कहते हैं अपनी ज़ुबान में, वो, ठीक है? ये 7 हरूफ हैं, जो जिनको अगर छोटे बच्चों को बताया जाए तो हम कह देते हैं कि माइटी लेटर हैं, बहुत ताकत वाले, पावरफुल, मज़बूत लेटर हैं। तो इनको
ये जो तख़फ़ीम वाले लेटर भी कहा जाता है, मुख़फ़्फ़म लेटर, मुख़फ़्फ़म लेटर या तख़फ़ीम, क्योंकि तख़फ़ीम क्या है? ये तख़फ़ीम हो रही होती है इनमें, मोटापन आ रहा होता है, तो इसलिए इनको मुख़फ़्फ़म लेटर कहा जाता है, ठीक है? तख़फ़ीम तख़फ़ीम होता है मोटा होना, और तरकीक इसके ऑपोज़िट है। तख़फ़ीम के ऑपोज़िट एक लफ़्ज़ है तरकीक। तरकीक में क्या होता है कि बारीकी आती है। को हाँ, मैं कहती हूँ कुछ हरूफ बारीक हैं, कुछ हरूफ मोटे हैं। अब जो मोटे हैं, जो ये 7 हैं, खुस्सा, दौ, तिन, क़िज़, इनकी ये फ्रेज़ याद कर लेंगे ना, 3 अल्फ़ाज़ बनते हैं, 3 अल्फ़ाज़। और ये मैं आपको बताऊँ कि अगर आप अल्फ़ाज़ में हर सिफ़त के उन हरूफ को याद कर लें जिनके फ्रेज़ आपको बताई जाती है। हम्ज़ की क्या थी? हम्ज़ की फ्रेज़ थी फ़हस्सहु शख़्सुन सकत। फिर शिद्दा की फ्रेज़ क्या थी? अजिदु क़त्तिन बकत। तवस्सत की फ्रेज़ क्या है? लिन उम्र। अब आती है इस्ताला की फ्रेज़ क्या है? खुस्सा दाग़तिन क़िज़। और हरूफ़े क़लक़ला की मैंने फ्रेज़ बताई थी, क़ुतुबु जद्दिन, क़ुतुबु जद्दिन। मैंने रिख़ावा की फ्रेज़ बताई थी, काल के नहीं, सॉरी, वो हरूफ़े शजरिया की थी। शजरिया में जो मखारिज है वो रहने दें। वो मेरे ज़हन में आई तो, क्योंकि रखावा बताते हुए मैंने बताई थी, तो इसलिए ज़हन में आ गई बात। तो वो जैश थी, यानी कि शजरिया की बजाय जैश थी, वो मखारिज में आती है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। अब हम देखते हैं पीछे से आते हुए, पीछे से आते हुए, क्योंकि हरूफ़े हल्क़िया से आते हुए हमने हमज़ा और हा खुद सदाउद्दीन क़िज़्म में नहीं है, छोड़ देते हैं, फिर इनको डिस्कस करेंगे। इस इस्ताला का ऑपोज़िट इस्तिफ़ाल है। इस्ताला का ऑपोज़िट इस्तिफ़ाल है। इसकी ज़िद में कौन-सी सिफ़त पाई जाती है? इस्तिफ़ाल, नीचे रहना, नीचा, निचला जिनको कहते हैं, यानी नीचे उसमें रहा जाता है। तो इस्तिफ़ाल हम जब करेंगे, तो फिर करेंगे, लेकिन इस वक़्त इस्ताला में ही हम रहते हैं। तो इस्ताला में हमज़ा और हा नहीं है, आइन और हा नहीं है, ग़ाइन और ख़ा में से ग़ाइन भी है और ख़ा भी है, दोनों हैं, ठीक है? ये जोड़ा पूरा का पूरा खुस्सदाग़तिन क़िज़्म में आता है, ठीक है? इसको देखते हैं। ख़ा, ख़ा को हमारे अल्फ़ाबेट में भी पहले आती है, लेकिन मखारिज के लिहाज से ग़ाइन थोड़ा ख़ा से नीचे होता है, लेकिन जगह वही होती है, ठीक है? तो ग़ाइन को हम फिर देख लेते हैं। ग़ाइन जो है, ग़ाइन में क्या होता है कि हमने देखा फ़हस्सहु शख़्सुन सकत, हम्ज़ नहीं पाया जाता, ग़ाइन में मख़रज है। फिर ग़ाइन में अजिदु क़त्तिन बकत नहीं पाया जाता, उनमें नहीं पाया जाता ग़ाइन। फिर ये रिखावा में है, क्या है? आवाज़ रन करती है। जहर में हवा रुकती है, आवाज़ रन करती है। क्या है? हवा रुकेगी और आवाज़ दौड़ेगी, ये याद रखनी है। हवा रुकेगी, आवाज़ दौड़ेगी। अब जब आवाज़ दौड़ेगी, तो आवाज़ का डायरेक्शन किधर होगा, ये आज हम मालूम कर रहे हैं। जब एपिग्लोटिस बंद है, गा गा गा, तो वो थोड़ा-सा पासी जो तंग रास्ता है, उससे होती हुई जो हवा है, और ज़ुबान नीचे की हुई है दरमियान से, तो हवा का रुख किधर है? वो सख्त तालु की तरफ उसका डायरेक्शन बन जाता है। तो इसमें फिर हम ग़ाइन में क्या देखते हैं कि एक तो ग़ा ग़ा,
اس کا میں نے کہا تھا کہ اس کی جو آئے ہمز سوری ہا کی طرح یہ نہیں ہے، ہا کی طرح یہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہوا بھی باہر بہت جلدی آ جاتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس کی آواز جو ہے رکتی ہے وہاں پہ۔ اب زبان آگے سے جڑ سے اوپر چلی گئی تو اس کا جو ہے آواز کے نکلنے کا راستہ بھی تقریباً بند ہو گیا، تھوڑا سا جو تنگ جگہ ہے اس سے یہ نکلے گی اور ڈائریکشن بدلے گی اپنا، جو ہے زیادہ خالی جگہ اوپر کی طرف ہی ہوتا ہے نا، جیسے آپ میرے ذہن میں ابھی بات آئی، جیسے آپ پانی ابالتے ہیں تو گرم چیز کی سٹیم کدھر کو جاتی ہے؟ اوپر کو ہی اٹھتی ہے نا، جلدی جلدی اوپر کو اٹھ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں غین میں اس کے مخرج میں بھی جایا جاتا ہے، تو اس کو دونوں طرف سے جو ہمارا پائپ ہوتی ہے ہمارے گلے کی، تو حلق کی، تو اس کو دونوں طرف سے ایک دوسرے کی طرف سکویز کیا جاتا ہے، ایک جیسے دبتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف بڑھتی ہے، جیسے جیسے ہم کسی سپنج کو فوم کو سکویز کریں تو کیا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو اس طرح ہوتی ہے اس کی، تو وہاں پہ آواز رک رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس کا مخرج تھا۔ اب کیونکہ ہم صفات پڑھ رہے ہیں تو اب اس کو پتہ کرنا ہے کہ کیا کیا ہے اس کے ساتھ جب وہ نکل رہا ہے اپنے مخرج سے، جب مخرج میں داخل ہو رہا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا غین۔ اب آتے ہیں ہم خواہ کی طرف۔ خواہ میں جو ہوتا ہے خا خا خا، تو اس میں بھی ہم کیونکہ موٹا حرف ہے اور ہمیشہ ہی موٹے رہتے ہیں، موٹے حروف ہمیشہ ہی موٹے رہتے ہیں، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ان کو کدھر بھیج رہا ہے۔ ہاں جی ہے کہ ان کے موٹے ہونے میں وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے رخاوا وغیرہ کا بتایا، اس کا بھی ہم بعد میں انشاءاللہ ابھی بلکہ کر لیتے ہیں، کیونکہ کیا ہے کہ اس میں ہر حرف میں ڈفرنٹ ہو سکتا ہے، جب ہم اس کو پڑھیں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس کی صفات ہیں، اس کے مخارج ہیں، اس کا جوڑا ہے، اس کے یعنی گروپ کس سے ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو خواہ میں خواہ حلقیہ لیٹر ہے، حلق کے ہم کہتے ہیں ادن الحلق سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہمارا گلا ہے اس کا بالکل اوپر والا آخری حصہ جو ہماری منہ کی جانب ہوتا ہے، نزدیک کا حصہ، ادنا دنیا سے ہے، بائی دا وے ادنا دنیا سے ہے، دنیا نزدیک ہے نا، تو آخرت دور ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے، تو دنیا، تو یہ پھر کیا ہوتا ہے کہ خواہ کے لیے بھی وہی ہے، خا خا خا، اس کے لیے ایک زبان کی جڑ بھی اٹھی ہوئی ہے اور پیچھے سے، اور پھر کیا ہے یہ جو اس کا مخرج ہے، دو حصے ہی آلویز انوالو ہوتے ہیں، دو حصے ہی ہم استعمال کرتے ہیں ہر مخرج کے، تو وہ دو حصے ایک دوسرے کی طرف خا خا پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں، بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اس کی خواہ کو خص ضغط قزم ہے، استعلا میں ہے، ہمس میں دیکھیں فہد سہو شخص شخ شخص سکت، وہاں پہ ہے، ہمس میں ہے، تو ہمس کی کمزور اس کی صفت ہے، تو یہ ہمس میں آ گیا تو کیا ہوگا، ہوا باہر رن کرے گی، آئین میں رک گئی تھی، آئین جہر کا لیٹر تھا اور یہ ہمس کا لیٹر ہے، ہوا جو ہے باہر کو نکل جائے گی۔ دوسرا اس میں یہ خواہ جو تھا یہ رخاوا کا لیٹر ہے، اجید قطن بکت میں نہیں ہے، نہ ہی یہ لن عمر میں ہے، ٹھیک ہے، توسط میں ہے، یہ رخاوا میں گیا تو ہوا آواز باہر دوڑتی ہے، اس کے لیے ہوا بھی نکل گئی، جو بھی وہ بھی اس کی صفت کمزور تھی اور یہ صفت اس کی سٹرونگ ہے،
یہ زیادہ مضبوط صفت ہے استعلا کی، جس کی وجہ سے اسے اتنا بڑا درجہ مل گیا کہ یہ موٹے حروفوں کا ساتھی بن گیا۔ یہ درجے کی بات ہے نا، درجے میں یہ موٹے ہیں، پاورفل ہے، مضبوط لیٹرز ان کو کہا جاتا ہے۔ پھر ان کی مضبوطی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا سب سے اوپر آتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ پھر الحمدللہ اس کا ہم نے کر لیا۔ آگے آتا ہے ہمارا قاف اور کیف، قاف اور کیف۔ تو قاف میں قلقلہ بھی ہے، قلقلہ کی صفت بھی پائی جاتی ہے۔ قاف ہمارا جہر میں سے ہے، یعنی اس میں سانس بھی رکتی ہے، ہوا بھی رکتی ہے، اور قاف ہمارا آجدو قطن بکت میں بھی ہے۔ یہ وہاں پہ حروف قلقلہ میں چلا جاتا ہے وہاں سے، جب یہ شدہ میں آتا ہے، یہ شدہ میں بھی آتا ہے، تو یعنی یہ بھی سختی ہے اس کی، اور قاف جہر کی بھی مضبوط صفت ہے اس کی، اور شدہ کی بھی مضبوط صفت ہے، اور قاف کی یہ استعلا کی بھی مضبوط صفت ہے۔ تین مضبوط صفتیں ہوگی، یعنی کہ جن کو پاورفل صفات کہا جاتا ہے، یعنی کہ مضبوط ہے، کمزور نہیں ہے، کمزور کے مقابلے میں آتی ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو جیسے قلقلہ اب اس میں آتا ہے، تو قلقلہ کا میں نے بتایا تھا کہ جب گیند کو دیوار پہ ماریں تو یہ ایک آواز پیدا ہوتی ہے، تو گیند تو ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے لیکن آواز وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، تو وہ جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ باؤنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے دیوار پہ مارنے سے گیند باؤنس ہو کے واپس آتی ہے، تو یہ قلقلہ ہے۔ تو حروف قلقلہ قطب جد 5 ہیں، تو ان میں سے قاف ہے، قاف میں اق، کب آواز ایسی ہوگی، قلقلہ کب ہوگا، جب یہ جزم کے ساتھ پڑھا جائے گا، جب بھی جزم میں آئے گا تب، جیسے اگر شد بھی ہے اس کے اوپر تو شد میں بھی پہلے جزم لیٹر پایا جاتا ہے اقا، اقا، ٹھیک ہے، اس طرح۔ تو قا، 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 قی، قو، اق، اقا، اقو، اقی، اقا۔ تو یہ ہمارا عین جو تھا، اس غین جو تھا اس کا ہم نے نہیں کیا، تھوڑا سا آغ، آغ، غا، آغ، غا، یہ ٹائم دیا جاتا ہے اس کے اوپر، آغ، غا، آغ، غی، آغ، غو، آغ، آغ، یہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگ نہیں ہونا چاہیے، آگ، اور گا وہ ہمارا اردو والا گاف ہے، ہمارے عربی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، عربی میں اس کی آواز نہیں ہے گاف کی۔ تو وہ ویسے بھی گاف کہاں سے آتا ہے، وہ آگے سے آ رہا ہوتا ہے، تو یہ غین جو ہے تو وہ تو حلق کا لیٹر ہے، تو اس لیے اس میں فرق کرنا ہے، گا گا نہیں کرنا اس کو، گین گین بھی نہیں ہے، گین گین ہم کرتے رہتے ہیں، گاف اینڈ گین کوئی اس میں فرق نہیں کرتے۔ حالانکہ وہ اردو بھی جو ہے ہمارا بگڑا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم ٹھیک پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ بگڑا ہوا غین ہوتا ہے جب ہم اس کو گاف گاف کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، غا، غا ادھر بھی غین ہی ہوتا ہے، غین، غین ادھر بھی غین ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو غا، غا پیچھے سے موٹا بھی ہے، گا نہیں کرنا، گا 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 مجھے وہ بری کرنا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ موٹا حرف ہے نا، تو بری کرنا بھی نہیں، مشکل لگتا ہے بری کرنا بھی، وہ گاف کی طرف بہت جلدی چلا جاتا ہے، کیونکہ گاف جو ہے بریک لگتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے وہ ادھر چلا جاتا ہے۔ تو یہ پھر خا، اخ، 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 کیسے رن ہو رہی ہے نا، آپ فیل کر سکتے ہیں، اخ، خا، اخ، خی، اخ، خو، اخ، اخ، خا، خا، خی، خو، خا، 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 جیسے آپ کا کئی دفعہ ہوتا خا، خا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بہت سارا وہاں پہ جیسے آواز آ رہی ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو آگے قاف کا ہم نے کر لیا،
تو काफ के ऑपोजिट ज़ाहिर है काफ है, तो उससे उसका ये है कि ज़ुबान की जड़ सख्त तालू से लगती है और थोड़ी-सी नरम तालू से भी लगती है। सख्त और नरम दोनों, सख्त शुरू हो रहा होता है, नरम खत्म हो रहा होता है, वहाँ लग रही होती है। तो ज़्यादातर आपको लिखने में यही आता है कि सख्त तालू से लगती है, लेकिन असल में ये दोनों तालू से लग रही होती है। तो यानी सख्त और नरम से। बारीक है अक, अक, इसमें खा खा सा भी लोग कर देते हैं खा। तो ये जैसे खा 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 क्या होता है, काफ जा खा की तरफ ले जाते हैं, हर्फ खाफ खा की तरफ इसको, जा इसको कैफ कैफ बिगाड़ के कर देते हैं, बिल्कुल मुंह ऐसे बिगाड़ लेते हैं। कैफ जो केफ भी कहते हैं लोग, ये बहुत सारी गलत इसकी शक्लें हैं, इनको नहीं करना। तो ये इसकी यानी जैसे के एंड हिच की साउंड, जो इंग्लिश स्पीकर है उनकी के और हिच की साउंड वो लाते हैं इसमें। वो जैसे हमारा कैफ है डंडे वाला, और उसमें हा आंखों वाली का इजाफा करके और अलीफ आगे लिख के हम खा लिखते हैं। जैसे फा लिखते हैं ऐसे खा लिखते हैं। तो इस तरह वो कर देते हैं, या होता है उनके फिर अक अक जे ख की साउंड आगे से आ जाती है, वही काफ और हा को मिला के, जो आंखों वाली हा है, ये हमारी जुबान में होता है, दो हरूफ मिलाकर एक आवाज निकाली जाती है, तो वो सी निकाल देते हैं फिर। तो ये हम अक अक देखिए आ रही होती है ना इसमें, अक 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 खा अक खा अक की अक खू। ये इसका इस्ताला का लेटर नहीं है, क्योंकि ये काफ के ऑपोजिट है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बता रही हूँ। अक खी अक खू कू खू खू नहीं कहना, कू कू, और कू भी नहीं कहना, कू आसानी के साथ कहने वाला ये मैं कह सकती हूँ, की का की कू, क्या की कू। और जज्म के साथ कू क्या की, यानी थोड़ा-सा लंबा। स्वाद की तरफ आते हैं, ये हमारा याद रहे कि अब कि मैंने इस्तिफ़ाल में से कैफ़ कर लिया है, ठीक है? स्वाद स्वाद के लिए ज़ुबान पीछे से उठी होती है, ज़ुबान की जड़ तालू को लगती है, और लेकिन ज़्यादा नहीं लगती, यानी ज़्यादा नहीं लगती। सौद 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 सौद, या ऐसा लगता है, फ़ील होता है जैसे एक तरफ से ज़्यादा हो रहा होता है, टच कर रहा होता है, दूसरी तरफ से कम कर रहा होता है टच। सौद सौद सौद, ठीक है? ज़ कोई भी मोटा हर्फ हो, ये याद रखना है, कोई भी मोटा हर्फ हो, इनको अदा करते वक़्त ये है ज़ुबान को गोल यानी मुँह को गोल नहीं करना, मुँह को गोल नहीं करना। बिल्कुल मुँह को ऐसा नॉर्मल रखना है। मुँह को गोल करने से इनमें पेश की सी आवाज़ आती है, पेश आ जाती है। पेश का वो हम कहते हैं ना टच आ जाता है, तो पेश नहीं लानी है इनमें। क्या करना है? इनमें ज़ुबान को पीछे से उठाना है। तो ये सारे हरूफ में, ये सारे हरूफ के लिए क्या है कि मुँह को गोल नहीं करना। मुँह की गोलाई से इसको ये नकली इस्तेअला हो जाएगा, नकली इस्तेअला, ना? हम कहते हैं ना कि ये नकली चीज़ है, असली नहीं है। तो असली इस्तेअला नहीं होता, फिर नकली इस्तेअला हो जाता है। अगर ऐसा किया जाए, मुँह को गोल किया जाए, तो आपने बिल्कुल देखना है कि मुँह की गोलाई नहीं आनी चाहिए इनके लिए। ये इनके लिए शर्त भी कह लें। कि मुंह को गोल क क क, मुंह मेरा बिल्कुल गोल है, ऐसे नहीं करना। का का मुंह खुला है, जो उसमें नेचुरल है वो नेचुरल है, लेकिन ये है खुद से मुंह गोल नहीं करना। और फिर ये है कि क्योंकि स्माइली लेटर नहीं है, तो बिल्कुल जबड़ा नीचे भी नहीं गया होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि जुबान पीछे से ऊपर उठी हुई है।
تو इसके लिए फिर ये है कि आस्फा सफीरिया है, हरूफे सफीरिया है, क़ाफ और कैफ हरूफे लिहातिया थे और ये हरूफे सफीरिया है। मखरज बता रही हूँ इनका। सौद काब हरूफे सफीरिया में से सीन भी आएगी इसमें, सॉरी सीन में इसमें नहीं आती, सौद आता है, ठीक है। हरूफे सफीरिया में से सिर्फ सौद आता है। अस्सा अस्सी अस्सु सू सू सौ सी, तो इसमें सा सी सू नहीं करना, ये सीन की आवाज है, ठीक है। सीन को नहीं लाना, सीन और सौद में फर्क करना है, क्योंकि सौद इस्ताला का मोटा लेटर है, इसमें हम्स है, इसमें रखावा है, यानी कि दोनों कमजोर सिफात है सौद में, और ये मोटी सिफत है, इसकी मजबूत मोटी नहीं मजबूत सिफत है। तो यानी सीन को इसके जिद में देखें तो आसानी से सीन की आवाज बाहर आ रही होती है, यानी इसकी आवाज भी बाहर आती है ना, जैसे हम्स में भी हवा बाहर आती है, रिखावा में आवाज भी बाहर आ रही होती है। इसको अगर सीन की जिद में ले तो इसके इसकी दो जो है सिफात जो है वो इसको कमजोर करती हैं, यानी कि हवा भी और आवाज भी बाहर आ जाती है। अब ये बाहर जब आ रही होती है तो इसका डायरेक्शन कहाँ है, ये हम इसमें मालूम करते हैं। तो सीन में, क्योंकि इस्तिफाल का लेटर है सीन जो है, उसमें सीटी तो दोनों में पाई जाएगी, व्हिstलिंग साउंड यानी सीटी दोनों में पाई जाएगी, एस और एस दोनों में फ़र्क है। ये क्योंकि जिसके लिए ज़ुबान की जड़ ऊपर उठी हुई है, आवाज़ का डायरेक्शन जो है वो सख्त तालु की तरफ है और फिर वो बाहर आती है। आवाज़ सख्त तालु की तरफ डायरेक्शन उसका होके फिर बाहर आती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि सौद के लिए क्या है? ज़ुबान की नोक भी नीचे वाले दाँतों से लगी होती है, और फिर नीचे क्योंकि ज़ुबान ज़रा-सा मोटी है ना, बेशक नोक भी लगाते हैं, तो क्योंकि ऊपर वाले दाँत भी बिल्कुल करीब आए होते हैं, तो टच करने का उनका भी इम्कान बढ़ जाता है उनसे भी, तो उनके बिल्कुल करीब चली जाती है, ठीक है? जिसकी वजह से इसका डायरेक्शन जो है अब ज़ाहिर है कि ऊपर तालू से होकर गुज़रेगा, क्योंकि आगे से ज़ुबान आगे से भी उठी हुई है, पीछे से भी उठी हुई है। तो जिसकी वजह से ये इसमें ज़ुबान में थोड़ा-सा नीचे को जा रही है, कप शेप सी की तरफ। यानी गड़ा-सा बन रहा होता है इसमें, ज़ुबान में गड़ा-सा बनता है। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें फिर हम, क्योंकि इस्ताला की गलती जो है होंठों को गोल करना है। तो हर सौद जो है सौद, सौद, कोई बिल्कुल सौद, अब मैं क्या कर रही हूँ, बिल्कुल होंठ गोल हैं जैसे पेश की तरह है, सौद में पढ़ रही हूँ। मोटाई तो है, लग रही है, लेकिन नकली सीधी नकली लग रही है, पता लग रहा है, जो जानने वाला है उसको पता चल रहा है कि आप मुँह को गोल करके पढ़ रहे हैं, आप ज़ुबान की जड़ को ऊपर से नहीं उठा रहे, पीछे से नहीं उठा रहे ऊपर। तो पता चल जाता है, ठीक है? इसीलिए फिर जिसको पता हो उससे पढ़ना चाहिए, ठीक है? हम आज बहुत रिवाज है, हर बंदा ही ऑनलाइन कुरान पढ़ाने वाला बना हुआ है। एक एक कारोबार बना हुआ है लोगों का, और अल्लाह से डरना हमें चाहिए कि आगे आने वाली नस्ल को हम दे क्या रहे हैं? क्या दे रहे हैं उनको, कि हम गलत तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो भी तो आगे आने वाले जो हैं, ज़माना जो है उसके उस्ताद होंगे ना वो भी उस्ताद होंगे, वो भी किसी को देंगे। अल्लाह करे कि वो उस्ताद हों इंशाअल्लाह, इसलिए उनको ठीक दें। देने वाले को भी ठीक देना चाहिए। अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम अल्लाह से डरते डरते हुए लोगों के साथ मामला करें। कारोबार सिर्फ़ ब रुपया कमाने का ज़रिया ही ना इसको बना लें, क्योंकि हर बंदा ज़रा सा भी कोई ग्रुप खोलता है उसमें आ जाते हैं, और मैं ऑनलाइन टीचर हूँ। जब उनका कई दफ़ा मैंने सुनने की कोशिश की है, मैं कहती हूँ कि सुनाओ फिर, तो फिर पता चलता है कि क्या होता है। तो इसलिए हमें डर के देखना चाहिए कि पहले हम खुद सीखें,
اور फिर हम आगे दें। अल्लाह सुब्हाना तआला हमें तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये अगर हम बच्चे को बता रहे हैं कि ये गोल है, जब बड़े को बता रहे हैं यानी कि ये मोटा करने के लिए मैंने मुँह को गोल किया है, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है कि किस तरह वो मोटा होता है हर्फ, लेकिन इतना मुझे बता दिया गया, या पढ़ दिया गया। हाफ़िज़ कुरान जो है, कुरान हिफ़्ज़ किया होता है, जब पढ़ ठीक रहे होते हैं, जब उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता मोटा कैसे हुआ। बस मैं मोटा पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। तो ये मोटा कैसे होता है? ज़ुबान की जड़ पीछे से उठाई जाती है, आगे से मुँह को गोल नहीं किया जाता, होंठों को गोल नहीं किया जाता, मुँह में गोलाई नहीं लाई जाती। तो इसका ख़्याल रखना है। प्रेशर बनाने के लिए अच्छा-सा, जितना अच्छा सब लेटर्स में प्रेशर आप बिल्ड करेंगे, दबाव आवाज़ का होगा बिल्ड, उतना ही इस्ताला हरूफ जो है अच्छे अदा होंगे, ये याद रखें। जितना प्रेशर अच्छा बनाएँगे उतना ये इस्ताला हरूफ जो हैं अच्छे अदा होंगे। जितना आप दम्मा की तरह पढ़ेंगे, यानी पेश की तरह पढ़ेंगे, उतना ही इस लेटर्स पढ़ते हुए इनको मुँह में घुलाई आएगी, तो ये गलत करना है। मुँह को खोलना है, ठीक है? मुँह को खुले रखना है, गोल नहीं करना। ये इनमें बुलेट पॉइंट डाल के लिख लें। कौन से काम नहीं करने, हर सिफत में कौन से काम करने होते हैं उनको बुलेट पॉइंट डालें, और कौन से उनके नहीं करने होते उनको बुलेट पॉइंट डाल के अपने लिए नोट्स बनाएं, ताकि आपको पता हो कि क्या करना है। इन इन 7 हरूफ को भी 2 ग्रुपों में हम तक़सीम करते हैं। इंशाअल्लाह वो अगली सिफ़त में अगले जोड़ा जो है, जे इस जोड़े का नहीं, अगले जोड़े में हमें पता चलता है कि किस तरह इनको, इन 7 को भी 2 ग्रुपों में किस तरह हम तक़सीम कर देते हैं। आगे हम आते हैं वेरी क्विकली। स्वाद कर लिया, और फिर हम दौद की तरफ आते हैं। दौद को हम बहुत अच्छी तरह पहले देख भी चुके हैं। मखारिज में हाफ़तुल लिसान का लैटर है, बहुत बड़ा वाइड रेंज में मखरज है उसका, और ज़ुबान की करवट काफ़ी लंबी तादाद में उसको उठती है, थोड़ी सी करवट जो है ना, मोटा हिस्सा पीछे सा वाला, तो वो जो है वो किधर लगती है, दाएं या बाएं तरफ की 5 दाढ़ों से लगती है, और जा दोनों से भी लग सकती है, वो कोई कोई लगा सकता है, लेकिन ठीक लगनी चाहिए। बाएं तरफ लगाएं तो ज्यादा आसानी होती है लगने में। तो ये जो है, ये दौद 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 नहीं होना चाहिए, दौद वहां पे रुका रोका जाता है। दाल का कलकला नहीं किया जाता, दाल के मखरज पे आके, दाल के मखरज के करीब जबान जाती है, लेकिन उससे लगती नहीं है कि लगने के बाद वो परे हो, क्योंकि जब लगी नहीं है तो परे होने का इम्कान नहीं है। इसलिए जज़्म की हालत में दौद में कलकला नहीं आता। ठीक है? तो इसको बहुत आसानी से कलकला इसमें कर दिया जाता है, क्योंकि दाल के मखरज पे लगा के ज़ुबान की टिप को आगे से, क्या ज़ुबान की टिप आगे से उठती है, यानी नोक ज़ुबान की आगे से उठती है और दाल के मखरज के करीब जाती है। इसलिए आगे से भी रास्ता इसका काफ़ी हद तक बंद, यानी बंद हुआ होता है आगे से भी। पीछे से ज़ुबान की जड़ बंद है, करवटें जो हैं वो साइड पे करवट लगी हुई है, और क्या है कि काफ़ी हद तक ये बोट शेप कहते हैं, बोट शेप बन जाती है ज़ुबान। तो ये कश्ती-नुमा जैसे, यानी कि स्वाद ज़ा और तौ के लिए ज़ुबान जो है कप शेप बनती है, गड़ा नीचे से होता है, लेकिन दौद के लिए ज़ुबान जो है दराज़ होती है, तो बोट शेप सी बन जाती है। ये इसका मैं मुखारिज बता रही हूँ, ये मुखारिज की आपकी है, क्या है? दोहराई है। ये रिवाइज़ आप देखें कि हर सिफ़त में मैं रिवाइज़ करा रही हूँ इनको, इनकी सिफ़ात की भी और इनके इनके मखारिज की भी। फिर भी बहनें अगर कहें कि हमें अलहदा से रिवीजन कराई जाए, तो वो भी इंशाल्लाह हम कराएँगे, लेकिन ये है कि ये हमारे फिर एक रबत इनका टूट जाएगा जब इनको पूरा ना किया जाएगा तो। इंशाल्लाह ताला फिर ये देखे हैं कि पिछला हिस्सा ज़ुबान का मस्ट भी 7 इन 7 हरूफ के लिए उठना चाहिए। जो भी हर्फ मोटे पड़े जाते हैं, वह प्रेशर वरना आएगा नहीं, प्रेशर वरना आएगा नहीं, ये याद रखें। ज़ुबान का पिछला हिस्सा, ज़ुबान की जड़ ऊपर नहीं उठेगी तो प्रेशर नहीं बिल्ड होगा, तो हर्फ बारीक अदा होगा।
या फिर प्रेशर नकली लाया जाएगा मुंह गोल करके। और इसमें फिर दौद का मैंने बताया कि दौद का थोड़ा सा ही मैंने बताया है कि दौद के लिए जुबान का दरमियानी हिस्सा क्या किया जाता है। हर एक के लिए जुबान का जड़ जो है वो तो पीछे उठी होती है सातों के लिए, और ज़ुबान नीचे दरमियान से हुई होती है सातों के लिए ही। लेकिन ये है 4 हरूफ ऐसे हैं जो उनके लिए सौद, दौद, तौ, ज़ौ, इनके लिए ज़ुबान की नोक भी आगे से उठती है। लेकिन गैन और क़ाफ और क्या है ख़ा, इनके लिए ज़ुबान की नोक आगे से नहीं उठी होती, सिर्फ़ ज़ुबान की जड़ पीछे से उठी होती है, ज़ुबान आगे से बिल्कुल फ्लैट सी होती है, गड़ा सा थोड़ा-सा होता है लेकिन फ्लैट सी होती है, नीचे ही रहती है, क्योंकि ये इनकी क्वालिटी में पाया जाता है। इंशाअल्लाह ताला ये हमारा क्या है ज़ौ का मखरज फिर कहाँ है? जो टिप ज़ुबान की नोक जो है कहाँ लगती है? ऊपर वाले 2 दांतों के नीचे हरूफ़े लिस्विया में से हरूफ़े लिस्विया था, सा, ज़ाल और ज़ौ हरूफ़ लिस्विया का हिस्सा है। कुछ लोग कहते हैं कि ज़ुबान बाहर से नज़र आ रही होती है। ठीक तजवीद बताने वाले कहते हैं कि ज़ुबान को बाहर से नज़र नहीं आना चाहिए। ज़ा बिल्कुल थोड़ा-सा होता है जो कि वो उसकी नज़र आ रही होती है। ज़ुबान को बाहर से नज़र नहीं आना चाहिए। थोड़ा-सा ही होता है जो कि उसका टच होता है, लेकिन ज़ुबान बाहर से नज़र नहीं बहुत आ रही होती, ठीक है? तो ये ज़ा थी। बाकी सब की तरह ये भी ऐसा ही है, नर्म है, ठीक है? ये नर्म भी है, इसमें नरमी भी चाहिए पाई जाती है। किस तरह है ज़ा जो है किससे है? फ़हद सा शख्स सकत में, हंस में नहीं है, जहर में पाया जाता है, हवा रुकती है ज़ा की, और ये अजिदु क़त्तिन बक़त में नहीं है, ये इसमें रिखावा में है, आवाज़ बाहर जाती है, साँस रुकती है, आवाज़ बाहर जाती है। अब आवाज़ का डायरेक्शन इस ताला में हम पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है आवाज़ का डायरेक्शन तालू की तरफ, सख्त तालू की तरफ होता है, ज़ुबान की जड़ पीछे से उठी होती है इसको मोटा करने के लिए, ठीक है? ये हमारे हो गए ज़ौ। अब हमारा ख़ा भी कर लिया, ज़ौ भी कर लिया, सौद भी कर लिया, दौद भी कर लिया, रै कौन-सा गया? क़ाफ़ भी कर लिया, ग़ैन भी कर लिया, सारे मेरा ख़्याल हो गए हैं हमारे। इंशाअल्लाह ताला खुस्सदौतिन तौ रह गया है, तौ हरूफ़े तो नितइया आ का नहीं तौ रह रह गई गया। है, यही कह रही जी, थी जी। तौ रह गई है, क्योंकि वो मैं जब गिने हैं तो पता चल गया। खुस्सदौतिन दाग़ुतिन तिन तौ जो है ये रह गई है। तो ज़ा में पहले अज़ अज़ ज़ी अज़ ज़ु अज़ ज़ी मोटा ही रखना है ज़ेर के लिए भी। अज़ ज़ु अज़ ज़ा अज़ ज़ा 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 कुछ अगर ज़ा कहेंगे या ज़ा कहेंगे, ज़ा मुँह खोल के कहीं और लगा रहे हैं तो जे ग मुँह खुला कब होता है, बरीक कब होता है जब पीछे से ज़ुबान नहीं उठी होती, ठीक है? तो इसको ज़ा के लिए, ठीक है? अब तौ की तरफ आते हैं। तौ का मखरज हरूफ़े नितइया है जी, हरूफ़े नितइया में से है। हमारी ज़ुबान की नोक भी आगे से उठेगी, ज़ुबान की जड़ मोटा करने के लिए पीछे से उठेगी, और ज़ुबान की नोक आगे से उठेगी इसके मखरज को अदा करने के लिए। मखरज के लिए ज़ुबान की नोक जो है वो क्या है कि इसमें 1 मिनट में थोड़ा-सा आपको ये इस्तेफ़ाल है, तो बाद में मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा-सा कि ज़ुबान की नोक जो है तौ के लिए आगे से कहाँ लगती है? ऊपर वाले 2 दाँतों के जड़ों से लगती है, जड़ से, ठीक है? वो बम्पी पार्ट जो दरमियान-सा होता है, उससे जाके लगती है। अब इसमें कलकला है। कलकला की सिफ़त है, क़ाफ़ में भी थी और इसमें भी 2 हरूफ़े कलकला हैं, इसमें पाए जा रहे। तो इसमें कलकला के लिए मैंने पहले भी बताया कि क़ाफ़ में कलकला के लिए बताया था जब जज़्म के साथ ये आएगा तो इसके ऊपर अत 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 अत
अत अत ता अत ती अत तू अत ता अत ती अत तू अत अत होना चाहिए, ठीक है। ये इसमें क्या है, जब ये दरमियान में आएगा तो कलकला छोटा होगा, जब ये आखिर में आएगा कोई भी हर्फ जज्म वाला जो होता है, जो भी कुतुबुज्जद्दीन में से है, कलकला जिसके ऊपर होता है, जब दरमियान में आता है किसी लफ्ज के तो कलकला छोटा होता है, कलकला सुगरा, और जब आखिर में आ रहा होता है, जहाँ इसके ऊपर रुकने के लिए जज्म लगा रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है, कलकला बड़ा होता है, ठीक है, ज्यादा आवाज बाउंस होती है। तो फिर इसको आप आप पहले जुबान की जड़ ऊपर उठी हुई है और आगे से जुबान की नोक लगी हुई है, दोनों चीजें लगी हुई है, ठीक है, दोनों चीजें लगी हुई है। और फिर जुबान की जो दरमियानी हिस्सा है वो कप शेप बना हुआ है, और कप शेप बनने की वजह से जो आवाज का डायरेक्शन है वो जो है वो फिर तालू की तरफ, यानी कि जुबान की छत क्या है, तालू, सख्त तालू की तरफ वो रुख उसका हुआ है। इसको देखते हैं हम कहाँ है, आजिदु क़त्तिन वक़्त में ये कहाँ है, शिद्दा में है, ठीक है। फिर हम्स में और जहर में देखते हैं, फहस्सहु शख्सुन सकत, उधर नहीं है, तो ये जहर में है। ये जहर में इसकी मजबूत क्वालिटी नंबर 1, मजबूत सिफत नंबर 1। फिर शिद्दा में मजबूत सिफत नंबर 2 एंड फिर अब इस्तेअला में मजबूत सिफत नंबर 3। तीनों सिफात इसकी मजबूत है, इसकी बल्कि इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि और सिफात क्या है। तो इंशाल्लाह ताला ये अम, था इसका पूरे इनका लब्बे लबाब सारे लेटर्स का खुस्सदागतिन क़िज़, याद करें इसको, ये इस्तिफ़ाल है, उसके मुकाबले में आप उस शक्ल को इतना देर तक देख रहे थे, ये इस्तिफ़ाल है, ठीक है। बिल्कुल नीचे जो इस्तिफ़ाल में लोअरिंग ऑफ द साउंड होगी इंशाल्लाह। कैसे, ये एपिग्लोटस जो है ये इसमें जगह ज्यादा होगी, ये इसमें जगह ज्यादा होगी, ठीक है। जहां से जगह ज्यादा है उधर देखते थे कि ये बहुत नैरो एरिया था, जहां से ज्यादा जगह पाई जा रही है। इंशाल्लाह इनमें जब देखेंगे तो पता चलेगा। फिर एक मिनट इनका मैं देखूं कि अगर कोई और तस्वीर में आपको दिखा सकी तो, नहीं है, इंशाल्लाह यही है। इसको हम इनके प्रैक्टिस में जाते हैं, ठीक है, इस्ताला लेटर की प्रैक्टिस। हम सिर्फ इस्ताला लेटर को देखेंगे इनमें, रेडी हो जाएं। अगर किसी बहन की कल बारी नहीं आई थी तो वो सबसे पहले अपने आप को अनम्यूट कर ले इंशाल्लाह, ठीक है। अगर किसी बहन की बारी नहीं कल आई थी तो वो अपने आप को अनम्यूट कर ले, इल्ला ये कि वो जहां पे थी नहीं, ठीक है, ठीक है। इंशाल्लाह फिरदौस बहन जी आप आ जाएं आगे। सूरत सूरत इखलास से शुरू करेंगे आप। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैंने इसकी गलती निकाल दी हुई है, आऊज़ु बिल्लाह की, इसको ठीक करना है आपने, ठीक है। आगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हा को भी साथ में मोटा नहीं कर देना, हिर राह, हा को फिर बारीक करना है। रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल 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 हुवल्लाहु अहद। का को और मोटा करें, क कुल कुल हुवल्लाहु अहद। वल्लाहु, लाम को मोटा करें, अल्लाह के नाम का, अल्लाह के नाम में अल्लाहु अहद। हुवा वल्लाहु अहद। वल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। ठीक है। आप मुझे बताएं कि क्या हो रहा है जहाँ पे,
اس میں قاف ہے، اس میں استعلا کا سسٹر یہ سورہ اخلاص کی پکچر نہیں آ رہی. او سوری میں نے شیئر نہیں کی. ایک منٹ، جزاک اللہ خیرن کثیرا، میں آپ کو شیئر کر دوں گی. شیئر تو کی ہے لیکن ہاف پکچر آ رہی ہے. ہاں تو اب سورہ کی آ رہی ہے، سورہ فلق کی آ رہی ہے. اب آ رہی جی ہے. بس تو آ رہی ہے، میں اسی میں سے پڑھ رہی ہوں. تو پھر کیا پرابلم ہے؟ میرے پاس سسٹر تو نہیں فل آ ہے. رہی، ہیں؟ نہیں آ رہی، نہیں آ رہی. آ رہی ہے کلیئر آ رہی ہے بالکل. اچھا نہیں آ رہی ہے اوپر سب سے پہلے. ایک منٹ اب سب خاموش. جس بہن کی نہیں آ رہی نا، وہ اپنے آپ کو ذرا سا اسکرین کو چھوٹا کرے، ٹھیک ہے؟ تو آ جائے جی گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انہوں نے اسکرین بہت بڑی کی ہوگی. تو اب ہم دیکھتے ہیں جی اس میں سے بہن فردوس آپ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، کون سا لیٹر ہے؟ اس میں قاف ہے جو استعلا سے لیا گیا ہے. قاف ہے، کاف نہیں ہے، کاف بھی نہیں ہے اس کو کہنا. قاف قا نہیں، قا 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 قاف 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 قاف. جی قاف. اس کو ٹھیک کرنا ہے. آپ ابھی اس کو اتنا موٹا نہیں پڑھتے. قاف میں موٹے حرف کے آگے آنے والا الف جو ہوتا ہے نا، قا کہنے کے لیے وہ الف بھی موٹا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں یہ بات، ٹھیک ہے؟ جہاں کتنے لیٹرز ہیں اس کے؟ جی اس کا قاف ہے بس. صرف قاف ہی ہے، ٹھیک ہے؟ صرف اور صرف قاف ہی ہے. قل هو اللہ، قل لام کے مخرج میں رہتے ہوئے. اور انسٹرکشن ہے یاسمین بہن کا مائک کیوں اوپن ہے؟ یہ سسٹر یہ نہیں آ رہا، سورہ اخلاص پورا نہیں آ رہا، بالکل آدھا آ رہا ہے، اور سورہ کافرون کا آ رہا ہے پورا. ہاں پھر آپ کی اسکرین ہی ہے نا، آپ نے اسکرین بہت بڑی کی ہوئی ہے، سائڈ پہ گئے ہوئے ہیں آپ سائڈ پہ گئے نہیں ہوئے ہیں. سسٹر میں وہ کرتی ہوں درمیان میں کرتی ہوں تو پھر بھی وہ چلا جاتا ہے. پھر اپنا قرآن کھول لیں. جس بہن کی یہ پرابلم ہو وہ اپنا قرآن کھولے، ٹھیک ہے؟ جی ویسے ٹھیک بھی ہے. قرآن بٹن کھولنا دبائیں، چاہیے، کوئی بات نہیں. اب بیک ہم کا نے بٹن بہت دبائیں. ٹائم نہیں دبانا. کیا ہوا وہ بہن کو سن لیں. آپ بہن کو سن لیں، جو بہن بتا رہی تھی آپ کو، ہیلپ لائن دے رہی تھی. جی میں کہہ رہی تھی بیک کا بٹن پریس کریں گی نا، ٹیپ کریں گی تو پھر شاید آ جائے گی آپ کی. وہ اپنے زوم کیا ہوا ہے بہت زیادہ، شاید ہم لوگوں کے پاس یہی سب ہے کے پاس فل ہی پرابلم، آ یہی رہی ہے. ہوتی ہے. زوم کا ہوتا ہے نا تب ہوتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اپنے آپ کو چلو میوٹ کر دیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آپ اپنا قرآن کھولیں. جس بہن کو پرابلم ہے وہ اپنا قرآن کھولے، تاکہ قرآن سے آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جزاک اللہ خیرن کثیرا. تو آگے والی آیت کون بہن پڑھے گی انشاءاللہ؟ آگے تو بلکہ اس میں قاف ہی تھا. اس کو میں سسٹر پڑھتی ہوں. سعد بھی ہے. سواد، ہاں سواد تو نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. گل عمران بہن کا ہاتھ کھڑا ہے، وہ اگلی پڑھے آیت نمبر 2 پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انشاءاللہ اس کو آپ پریکٹس کریں بعد میں ضرور، ٹھیک ہے؟ کہیں ایک بار. اعوذ باللہ نہیں، من الشیطان. جو حمزہ ہے اس کو نہیں کر دینا، ٹھیک ہے؟ وہ ہے، بس موٹا نہیں ہے. آ او اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب سب بہنوں کی جن کا غلط ہوگا وہ ٹھیک کر لیں اپنے آپ کا، کیونکہ اب میں نے بتا دیا ایک بار، کیونکہ پہلی بہن کا بھی ہوا تھا، میں نے سوچا نہیں بتاتی، لیکن اب سابی کا پھر ہوگا تو اس کو سن لیں دوبارہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پڑھیں آیت کو پڑھیں پلیز، بسم اللہ پڑھ کے. جی بسم اللہ الرحمن. اب آپ کی بس میں بھی سین کی سیٹی نہیں ہے. بسم بسم اللہ. اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الصمد. اللہ تو بریکی ہے. اللہ الصمد، اللہ الصمد. اللہ الصمد.
सा को जब पूरा स्वा भी कहते हैं, पहले तो हुस है ना, हुस, वो आप मोटा रखते हैं जब जज्म के साथ पढ़ रहे हैं, वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, वो हुस। लेकिन जब आप स्वा कहते हैं, वो आप सा कहते हैं, यानी वो सीन में वो मोटाई कम कर देते हैं, आप जुबान की जड़ ऊपर नहीं रहने देते पूरी, ठीक है, उसको ठीक करना है आपने, ठीक है। हुस सौ तक, यानी कि उसको हरकत तक, जबर अदा करते तक मोटा रखना है, ठीक है, क्योंकि दो स्वाद हैं, दोनों स्वाद को मोटा रखना है अच्छा। इंशाल्लाह। अल्लाहु समद। अल्लाहु समद, स्वाद में मसला आ रहा है, मतलब मैं समझ स्वाद नहीं में, पा। स्वाद में, हाँ जी, स्वाद को मोटा ही पढ़े। मोटा ही पढ़ना है, दोनों स्वाद को मोटा पढ़ना है। अच्छा, दूसरे वाला स्वाद बारीक हो रहा है मतलब। अब दूसरे स्वाद भी नहीं है, स्वाद, स्वाद, तो सौ, सौ, ये है अस और सौ, अस, सौ, अस्सी, अस्सू, ठीक है, इतना मोटा ही रखना है दोनों को इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैरन, आपको पता चल गया कौन सा मोटा हर्फ है जहाँ पे, है ना, ऑटोमेटिकली ठीक है। कौन सा स्वाद है। स्वाद, कितने स्वाद, स्वाद कितने स्वाद है? दो है ना, शद के अंदर दो दो, है, एक साकिन है, एक मुतहर्रिक है। हाँ, मुतहर्रिक जो है वो आपका बारीक हो रहा है, उसको मोटा रख लें, ठीक है जी। ठीक। आपके आ- थोड़ी सी हो रहा है इंशाल्लाह ताला। आगे वाला पढ़ दें क्योंकि इसमें नहीं है कुछ भी, और तो फिर आप पढ़ दें ताकि खत्म हो जाए ये सूरा। ठीक है जी। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। इंशाल्लाह ताला। शाजिया बहन आप आ जाएं प्लीज, आगे वाली सूरा जी, जिसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। फिर पढ़ें, कुछ कुल गड़बड़ हो गई जहाँ अऊज़ु बिरब्बिल फलक। जाल को आपने बहुत फनी में पढ़ा था पहली दफा। अऊज़ु बिरब्बिल फलक। जो होता है ना, ये सारी बहनें गौर फिक्र करें जब हम पढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ नॉर्मल बता रही हूँ सभी के लिए, अपने लिए भी। उल मोटा है, आ ऊ, आऊ, आऊ, ना आऊ नहीं करना, आऊ कर देंगे तो एक तो दोनों हमजा हो जाएंगे, आऊ। दूसरा ये है कि आ को हम हमजा को भी मोटा पा रहे हैं, आइन को भी मोटा पा रहे हैं, यानी दोनों के लिए जुबान की जाड़ भी पीछे से उठा रहे हैं, या मुंह गोल करने की कोशिश कर रहे हैं मोटा पाने के लिए, दोनों बारीक हरूफ है, ठीक है। ठीक, इसमें सिस्टर क़ा है हरूफ मुस्तालिया में से। क़ा है ना, तो दोनों शक्ल में आ गया क़ा, है ना। हाँ जी। कौन कौन सी शक्ल है? लास्ट में अगर हम इसको वो साकिन करेंगे तो जज़म की हालत में, और स्टार्ट में कुल में जो है वो पेश के साथ है पेश है, मुतहर्रिक। तो अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा? जेर हो जाएगी, फलकी। देर हो जाए, फलाकी, फलाकी, जी, फिर भी मोटा रहेगा वो, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। फलाकी, फलकी। फलाकी, फलाकी नहीं हो जाएगा, ठीक है, जुबान की जी जड़ जी, ऊपर ही रहेगी, ठीक हाँ है जी। जी, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। और शहनाज बहन आप आ जाएं, आगे वाला। आप बिस्मिल्लाह भी पढ़ चुके हैं, आउज़ुबिल्लाह भी पढ़ चुके हैं बार बार, क्योंकि जिस सूरत का शुरू हो रहा हो वहां पे बिस्मिल्लाह पढ़ी जा चुकी है, ठीक है। अब आप आयत नंबर 2 से शुरू करें प्लीज। सूरा सूरा फलक, सूरह फलक से करूं बाजी? जी जी, आयत नंबर 2 प्लीज। जी अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल पढ़े, अऊज़ु नहीं बिरब। दूसरी आयत नंबर 2, पहली बहन पढ़ चुकी हैं। अच्छा, तो दो से शुरू करें, ठीक 2 है। से शुरू करें, मिन शर्रि मा खलक व फिर पढ़े, मैं नहीं फिर पढ़े, फिर पढ़े इस आयत को। मिन शर्रि से ना बाजी? हाँ जी, मिन शर्रि मा खलक व खलक, मिन खलक। खलक अच्छा, इसको खलक। इसको ठीक करें, पहले हम इधर ही रहते हैं। मीम जो है इसको जरा सा भी मुंह म्यू नहीं करना। मी स्माइल लेटर है, मीम बारीक है ना, नून बारीक है कि नहीं?
अच्छा मीम बारीक है, नून बारीक है, शीन बारीक है। अब जहाँ पे रा भी बारीक होगी, जी क्यों? लेकिन आपको याद रहे कि शर, शर वो रा जो है वो मोटी रहेगी। शर, कौन सी रा मोटी रहेगी? पहले वाली। शर पहले पहले वाली शर जब हम कहेंगे, क्योंकि रुकेंगे तो शर हो जाएगा ना, तो रा वो मोटी जी रहेगी जज़म वाली। शर्री, री जब कहेंगे, जब हरकत वाली रा पढ़ेंगे तो वो बारीक होगी, ठीक है? जी तो इसको याद रखना है। मिन शर्री व मिन शर्री व मिन शर्री। अब इसको मिलाते हैं। सॉरी, कहाँ है? व मिन शर्री ऊपर वाली है। माँ बारीक है, माँ को मोटा नहीं, माँ बस माँ। माँ में अलिफ मद्दा है ना बाजी, तो थोड़ा सा उसको देंगे ना। लंबा करना है लेकिन मोटा सा नहीं करना। थोड़ा सा मुझे लग रहा था माँ 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 अच्छा माँ खलक, माँ ख्वा ख्वा, माँ। अच्छा अब ख्वा की तरफ आ जाए, खलक को कहें ख्वा, मा खलक माँ ख खलक। अब लक लाम को बीच में से बारीक खल रखना है। ख्वा ल प, खलक ख्वा ला, खलक ला के लिए ख्वा ला बारीक, q q, ठीक है? खलक, तो खलक काफ के लिए मोटा हो जाएगा। इसको ये ख्याल रखना है आपने, जी क्योंकि काफी काफ के मखरज की तरफ बहुत ध्यान देना है और खा के मखरज की तरफ बहुत ध्यान देना है। अगर बीच में लाम भी खलक कर जाएंगे तो लाम मोटा हर्फ नहीं है, ये अल्लाह इस्तिफाल का हर्फ है, ये इस्तेला का हर्फ नहीं है, लाम जो है, ठीक है? ये बाकी आप जितने पढ़ रहे हैं ये इस्तिफाल के हरूफ हैं। काफ सूरत इखलास में बाकी सारे इस्तिफाल में गए थे, एक सिर्फ काफ और स्वाद जो हैं, दो स्वाद, वो इस्तेला के लेटर थे। इस सूरा में आप देखते हैं कि ख्वा ख्वा और काफ इस्तेला के लेटर हैं जितने हमने पढ़े हैं। रॉ को मैंने कहा रब्बी मोटा करें, लेकिन रॉ की कंडीशन है मोटा होने की, रब्बी, ठीक है? क्योंकि वो रॉ में कुछ और है, हम पढ़ेंगे जबर के साथ रॉ आती है तो वो मोटी ही रहती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है आगे पीछे, ठीक है? तो फिर आगे इंशाल्लाह जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। इसमें आप मुझे बता दें कि कौन सा मोटा हर्फ है? आपने शायद बता दिया है। इसमें बाजी काफ भी मोटा हर्फ है और खा भी है, खा भी मोटा हर्फ है। अच्छा, जब इनको कहते हैं तब भी, जब बताते हैं तब भी इनको मोटे रखें, क्योंकि ये हर वक्त ही मोटे हैं, ठीक है? खा, जी खा भी मोटी है और काफ भी मोटा है, ठीक है? जी जी खा भी मोटी है और काफ भी मोटा है, इस तरह हाँ आपने कहना है, ठीक है? दोनों मोटी है, दोनों मोटे हैं। दोनों हरूफ कौन से हैं? हरूफ अभी वो मुस्ता, नाम मैं ले नहीं पाती, आप ठीक। बता रहे थे ना। ये मोटा इस्ताला कह दे, इस्ताला कह दे, मुस्तालिया है, लेकिन हाँ आप इस्ताला लेटर्स कह दें, ठीक है? मुस्ताला ये हरूफे मुस्तालिया है मुस्तालिया, हाँ 7 हुरूफ आते हैं ना मोटे, जी, वो वो है। मुस्तालिया ओके, बोलते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। फौजी बहन आप आ जाएं प्लीज जल्दी से। जी भाई। ومن شر غاسق إذا وقب। गाइन को फिर पढ़े इसको, गाइन को मोटा करते ومن हुए, काफ को मोटा करते غاسق हुए, काफ फिर आगे मोटा करते हुए, बा के ऊपर कलकला करते हुए, यानी काफी रूल्स आ रहे हैं, ठीक है? जी 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 काफ सारे मोटे غاسق होंगे, जेर वाला भी मोटा होगा, जबर वाला भी मोटा होगा काफ। गाइन जो है, गाइन के साथ अलिफ भी मोटा ही रहेगा, यानी जब तक आप उसकी मिकदार मद की कर रहे हैं तब तक वो मोटा ही रहेगा, ठीक है? जी 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 आगे पढ़े, नहीं नहीं, यही इसी पढ़े को दोबारा। ठीक करें अभी तो। अच्छा अच्छा। ومن شر غاسق إذا وقب। आप जो है मुंह की गोलाई की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से गौसिकिन आपका हो रहा है, गौस ये غاسق इसीलिए होता है जब वो उसको नकली इस्तेला देने की कोशिश की जाए, ठीक है? मुंह तो खुला होना चाहिए आपका, मुंह तो खुला है غاسق आगे से, क्योंकि इसके लिए तो जुबान की नोक भी आगे से नहीं उठी हुई,
یہ استعلا کے لیٹرز میں سے سیکنڈ گروپ میں سے ہے، جو غین قاف اور خوا کا گروپ ہے. غاسقین غاسقین غاسق قن إذا غاسق إذا وقب وقب وقب. وقب. شیخ ایمن سوید کو سب بہنیں سنیں. کیسے سنیں گے آپ؟ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن فار جی آل لکھیں اور اس کو آپ آ جائے گا، ایپ ہے وہ، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے فون پہ، جو بھی آپ ڈیوائس یوز کر رہے ہیں اس پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. وہاں پہ ریسائٹیشن میں جائیں تو ریسائٹیشن میں اس کے آتی ہے پکچر. انشاءاللہ وہ میں پکچر بھی اگر مجھے یاد رہا تو میں بھیج دوں گی گروپ میں، کیسی پکچر آئے گی. تو اس میں جا کے یہ آپ کریں انشاءاللہ تعالی. اور بھی بہت کچھ ہے، خزانہ ہے اس میں. تو علم جو ہے وہ چھپایا نہیں جاتا بلکہ بانٹا جاتا ہے، جو ملتی ہے نعمت اس کو بانٹا جاتا ہے. اس لیے میں آپ لوگوں کو، میں سب کو بتاتی ہوتی ہوں کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو استعمال کریں آپ کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اس میں آپ بہت سارے قاریز کو ڈھونڈیں گے، بہت سارے قاریز آپ کو نظر آئیں گے. تو انشاءاللہ تعالی اس میں جس قاری کو ڈھونڈنا ہے آپ، وہ وہاں پہ نمبر 30 سپارہ لکھا ہوا ہے، نمبر لکھا ہوا 30 کا نمبر. تو اس نمبر سے اوپر والا جو قاری ہے وہ ہے، اسی قاری کو آپ نے ہر وقت سننا ہے. ٹھیک ہے، جی بالکل. سب بہنوں نے صرف اور صرف اسی قاری کو سننا ہے اپنی تجوید ٹھیک کرنے کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دوسرے غلط ہیں، لیکن کیونکہ وہ آہستہ بھی ہے، اس میں بہت سارے جو ہے نا سمجھنے والے کے لیے، سننے والے کے لیے، لرن کرنے کے والے کے لیے، سبھی کے لیے اس میں ہے فائدہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. تو اس کو میں کوشش کروں گی کہ میں لکھ کے بھی اس کا نام بھی بھیج دوں. تو اس کو آپ سنا کریں. جو بھی آپ کی تلاوت آپ نے سننی ہے الحمدللہ، اب رمضان آ رہا ہے اس میں بھی سنیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اس میں کیا آیا ہے آپ کا؟ اس میں غین ہے مستعلیہ لیٹر سے، غین ہے. اور غین قاف. غین بہت آسانی سے غین ہے نہیں کہنا، غین ہے نہیں کہنا، غین غین ہے. غا غا غین ہے، پیچھے سے لائیں، غین غا لائیں، غا غا غا. ٹھیک ہے غین. جی. ٹھیک ہے. قاف ہے، آپ اپنی اردو قاف. بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ٹھیک کر لیں عربی کے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. بالکل. اور اچھا، قاف ہے. قاف ٹھیک ہے. قاف ہے، اور یہ وقابہ، اس میں بھی قاف قاف زیر والا بھی آ گیا، زیر یعنی والا بھی زیر اور والا نہیں زبر ہے، وہ والا بھی. تنوین والا ہے، تنوین والا آ گیا. تنوین کا ہے جی. اور زبر والا بھی آ گیا، حرکت والا بھی، اور غین حرکت والا آ گیا. اور با کے اوپر کیا ہوا؟ باقی اوپر قلقلہ ہے. قلقلہ ہے. باقی سارے لیٹرز کہاں گئے اس آیت کے؟ استفال میں. استفال میں جی. استفال میں چلے گئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. الحمدللہ رب العالمین. اب ہو سکتا ہے کہ میں سب بہنوں کو نہ لے سکوں. نوشین بہن آپ آ جائیں. جن بہنوں کو نہ میں لے سکی ان کی باری کل کو آئے گی انشاءاللہ، زندگی رہی تو. ٹھیک ہے نشین بہن، نشین بہن آپ ہیں تو آ جائیں جلدی سے. جی جی. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. فعل ہوگا جی کیا ہوگا؟ فعل ہوگا کہ فیل ہوگا؟ فِي فیل. الْعُقَدِ. فیل او عین وقد. وقد. عقد. ٹھیک ہے. فِي الْعُقَدِ. قا کو اور موٹا کریں. عقد. قد. وقد. دال کو عقد. اوپر نہیں سختی کریں کیونکہ دال کے اوپر شد نہیں ہے. جی جی، اس پہ جمپنگ وقد. ہے نا. وہ آپ ٹھیک ہے، آپ نہیں دال کے اوپر جمتے نہیں ہیں، دال کے اوپر قلقلہ قلقلہ. ہوتا ہے. جی جی، جمپنگ کیونکہ ورڈ. اگر جم کے پڑھیں گے مخرج میں جم کے آئیں گے. اچھا کیونکہ اچھا. جیسے یہ کہا ہے دال کہاں سے ہے، فحسہ شخص سکت میں سے نہیں ہے، جہر میں ہے، کیونکہ ہوا جو ہے رکتی ہے. اور آپ مجھے بتائیں کہ دوسری صفت میں کہاں ہے، دوسرے جوڑے میں دال، اس کی فریز دال آپ کو ہو پہ یاد ہے؟ قلقلہ.
जी हुर्फ कलकला। रूफ कलकला है, वो जो सिफात में से इसकी फ्रेज है दूसरी, सिफत नंबर 2 क्या है? शिद्दत में। कौन बहन बोली? उनकी बारी नहीं थी। प्लीज लुकमा ना दिया करें, उनको सोचने दिया करें। तो कहाँ है दूसरी सिफत में? जी शिद्दा में है, रिखावा है में है, लिन उमर में है, कहाँ है? आजिदु कत्तिन बकत में है, जा रिखावा में है, जा लिन उमर में है, तवस्सत में। जे शिद्दा में है मेरी बहन, आजिदु कत्तिन बकत, तो जनी के इसमें हवा भी रोक गई और आवाज भी रोक गई। आपने ठीक कहा कि इसको जम के पढ़ना है, लेकिन इसको जो ही आप मखरज में जम के तो जाएंगे, जम के नहीं हम फिर इसको कहते, क्योंकि जमने का लफ्ज पता नहीं वो जनी जो बताते हैं, जो तजवीद नहीं बताते, वो फिर कह देते हैं कि जम के पढ़ना है। ऐसे नहीं, फिर हमने कहना पूरी तजवीद का उसका असूल बताएं, क्योंकि इसमें हवा जो है रुकती है, आवाज रुकती है, तो आवाज का डायरेक्शन जो है क्योंकि आवाज जो है वो बाहर आती है तो डायरेक्शन नीचे रहता है, ठीक है। तो इसमें कलकला होता है, आवाज बाहर आ जाती है जब, तो बाउंस होके बाहर आती है, ठीक है। आप अब सब कुछ ही करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। जब आप करेंगे तो सब कुछ ही, ये मत सोचें कि आप मुझे पूछते हैं तो मुझे पता नहीं चलता तो अब मैं क्लास ही नहीं लूंगी, ऐसा मत करें। क्यों? क्योंकि नुकसान किसका होता है? जब बार बार दोहराई हो रही होती है तो नुकसान किसका होता है? हमारा होता है ना, जो सीख रहे होते हैं। तो इसलिए इसको आप बच्चों को भी जम के नहीं बताएंगी कि जम के अदा होता है, ठीक है। जी पूरा पूरा उनको जज़ाकल्लाह। बताएंगे, ठीक है, पूरा बताएंगे उनको। सिस्टर ये मैंने इख्फा सही करा हुआ, मैं इस तरह करेंगे बिल्कुल लाइट। में जे जुबान मुअल्लक होती है। हाँ जी, आपने किया है, इसको फिर जल्दी से पढ़ दे। वह इस तरह वह शर्रिन, ठीक है, हाँ जी, पूरी आयत पढ़ो। शर्रिन, हाँ जी पूरी पढ़े। आप आदत नहीं कर अल्लाह के कलाम को फिर छोड़ सकते। जी जी। वह शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, उक़द। फील उक़द, ओके ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। इसमें क्या आया है? कुछ आया कि वही पुराने हैं, मना मतलब जो पहले कर चुके हैं वही है इसमें, है ना। जी जी वही आगे है, वाली पढ़ दें क्योंकि उसमें कोई नहीं है, तो ताकि हम बढ़ सके, खत्म ठीक है। कर दें। वह शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। दिन में आप थोड़ा सा नून को हिला गए हैं, जो तनवीन का नून ऑडिबल है उसको हिलाया है आपने, ठीक है। जी वह हासी शर्रि। दिन, हासी दिन, वहां पे फिर दिन नून में चल जाते हैं ना, दाल के मखरज से नून के मखरज की तरफ जाते हैं, तो जो ही नून के मखरज में जाते हैं वहां पे ठहरते हैं जज्म में, जी सॉरी जेर के लिए भी नून मखरज में ठहरा लेता है फिर, ठीक है। हासिदिन, एक मतलब थोड़ी देर ठहरेंगे फिर नेक्स्ट वाला मखरज में दाखिल होंगे। हासी दिन, ठहरने की मैं बात नहीं की, ठहरना नहीं है। जी असल में जी ये है कि वहां पे जुबान ही रहने देनी है जब तक दाल कंप्लीट नहीं हो जाता। हासी दिन, दिन हासिदिन इजा हसद, क्योंकि जहां पे तो इज़ा इजहार हो हसद। रहा है हम टाइम तो देंगे ही नहीं इसको, जी 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 क्योंकि इजहार हो रहा है आगे। इन जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, इसमें कोई नहीं है, हमारा सारे इस्तिफाल लेटर हैं। कुछ जी कुछ साइज। आपको मुखफ़फ़ लेटर आएंगे तख़फ़ीम के साथ, जिनमें कंडीशनली तख़फ़ीम भी होगी, जो राह है कंडीशन है, अल्लाह के नाम के लाम का कंडीशन पाई जाती है मोटा होने की। लेकिन ये जो खुद सदागतिन क़ैज़ हैं, ये हमेशा मोटे रहे जाते हैं, रखे जाते हैं, पढ़े भी जाते हैं, कहे भी जाते हैं, बताए भी जाते हैं। कोई इनके ये नहीं है कि कोई लूप होल नहीं है इनमें, कि कोई गुंजाइश नहीं है कि हम बताने के लिए तो हम बरीक कर दें, और या इसका तर्जुमा पढ़ रहे हूँ तो हम वर्ड टू वर्ड कर रहे हूँ तो इसको बरीक कर दे, ऐसा नहीं करना। हर हाल में ये मोटे हैं, ठीक है, माइटी लेटर है।
तो इनको छोड़कर बाकी सारे इस्तिफाल में चले जाते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनुल जज़ा। इंशाअल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत बहुत नेक तमन्नाएं। हम क्लास को जहाँ पे ख़त्म करते हैं और जितने भी रूल्स कर चुके हैं, जितनी भी सिफात कर चुके हैं, मखारिज कर चुके हैं, इन सब को प्रैक्टिस करें, सुने बार बार। और जी है नहीं पता चलता तो ग्रुप में पूछ ले, और अगर किसी बहन का इतना गलत लग रहा है तो वो ग्रुप में सुना के भी बता सकती है कि मेरा जहाँ से सुन ले प्लीज, जहाँ पे गलती है मुझे लग रही तो ठीक कर दे। तो इंशाल्लाह ताला। और फिर हमारी सूरत सजदा जा रही है, अभी हमने शुरू की है। अगर किसी बहन ने वहां पे शामिल होना है सूरत सजदा में, हिफ्स भी करनी है और अपनी गलतियां भी निकालनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी हमारी माहिर कारिया भी सुन रही हैं और मैं भी सुन रही हूँ इंशाल्लाह ताला, और एक और बहन भी सुन रही है। तो इंशाल्लाह आप लोग शामिल हो सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए दावत है, अगर आपने शामिल होना हो। फ्री कोर्स है, कोई उसमें पे नहीं है। हमारे सारी चीज़ें फ्री हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हाना तआला कबूल करे। तो अल्लाह सुब्हाना तआला की तौफीक के साथ आज हमने इसको किया। इसकी दूसरी सिफत जिंदगी रही तो कल के करेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिन बहनों की बारी नहीं आई उनसे मैं माजरत खा हूँ, मैं उनको इंशाल्लाह कल लूंगी जिंदगी रही तो, ठीक है। इंशाल्लाह। बाजी अगर क्योंकि किसी मेरी बहन ने जी नोट बनाया है तो वो उसमें डाल दें। ये तो मैंने बहनों को बार बार कहा है, अब उनकी जी मर्जी है कि वो शेयर करना जी चाहती है। मैं इंशाल्लाह करूंगी आपके साथ, बल्कि पीडीएफ कोच में देख जिसमें सारे आ जाए ना, क्योंकि अगर जी सारी सिफात मैंने कवर नहीं की और आपको भेज दिया तो आप लोग कंफ्यूज होके फिर हो जाएंगे। वो जी बहुत जी जा फिर तसल्ली से बहने बैठ जाएंगी। अब मुझे नोट इसके मिल गए हैं और मुझे जी जरूरत नहीं है। हालांकि जब वो आपको बताया जाता है तो ज्यादा जरूरत होती है जी सुन के सुन करने की, जी नहीं ठीक है। सुनती तो हूँ बाजू में। एक्सप्लेनेशन की तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना ताला आसानी पैदा करे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इंशाल्लाह ताला हमारी नमाज चली जाएगी, जी बहुत लेट हो गई है, इस वजह से जी मैं आपका कोई और क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगी। जी जी वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम व अस्सलाम बरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम 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 अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। वबरकातुहू।